ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही वाणी 11 जून 2026 का। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। तो মহাবাক্যে বাবা কি বলছেন যে সত্যযুগের পুরো উত্তরাধিকার যদি নিতে হয় তাহলে একটাই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে এক বাবার প্রতি নিরাকার সে বাবার প্রতি যেন আমাদের ভালোবাসা থাকে, কোনো দেহধারীর প্রতি নয়। কোনো দেহধারী এমনকি দেবী দেবতা, এমনকি ব্রহ্মা বাবা আর বাকি ঘর গৃহস্থিতে যত সম্বন্ধই থাকুক না কেন, তার প্রতি যদি আমাদের এক আসক্তি থাকে, মোহ থাকে, পাওয়ার ইচ্ছা থাকে, থাকবেই, এটাই স্বাভাবিক। সেজন্য বাবা বলছেন আর এই দুনিয়া দেহধারীর প্রতি আমাদের মোহ, প্রেম, আসক্তি এটা হলো ক্ষণস্থায়ী, আর তাতে প্রাপ্তি কিছু নেই। দেওয়া নেওয়া, কামনা, বাসনা। তো সেই জন্য বাবা বলছেন যে একটাই সিদ্ধান্তে তোমাদের আসতে হবে যে ধীরে 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 দেহধারীর প্রতি আমাদের আকর্ষণ, আসক্তি, চাওয়া পাওয়া একেবারে কমিয়ে দিতে হবে। কেন পারছি না? তার কারণটা নিজেই খুঁজে বের করতে হবে। কারণ বাবা বলছে যে সত্যযুগের সম্পর্ক থাকবে নির্মোহী, থাকবে আত্মীয় পরিজন, থাকবে পরিবার, থাকবে, কিন্তু সেখানে কোনো রকম মোহ থাকবে না, আসক্তি থাকবে না, কোনো রকম কামনা থাকবে না। নিষ্কাম তো কখনোই হয় না, একমাত্র নিষ্কাম সেবাদারী হলেন সে বাবা। আরও যদি ভিতরে আমরা যাই তাহলে প্রশ্ন উত্তর গীতের উপর আমাদের খুব ফোকাস করতে হবে, তাহলে আজকের এই মুরলির যে শিক্ষা আমরা অবশ্যই ধারণ করতে পারব। আজকের প্রশ্ন, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे, उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? তো বাবা কেন বলছেন যে এই ইন্দ্রসভাতে এসে বাবার শিক্ষাকে গ্রহণ করে অনেক আত্মা কি হয়, ট্রেটার হয়ে বেরিয়ে যায়, বাবার বদনাম রটনা করতে করতে জীবনের বাকি সময়টা কাটিয়ে দেয়। কিন্তু বাবা বলছে যে যদি আমি বা অন্য কোনো আত্মা যদি মনে করে সত্যি আমি দেবী দেবতা বংশের আত্মা,
তাহলে তার লক্ষণ কি থাকবে, তার সামনে কি দৃশ্য থাকবে, তার সামনে বাবার দেওয়া জ্ঞানের কোন অক্ষর বারবার তার সামনে আসবে। যেমন ব্রহ্মা বাবা, যখন সে বাবা ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করেছিল, তো ব্রহ্মা বাবা অজান্তেই দেওয়ালের উপর লিখতেন। খেতে বসেছেন, থালের মধ্যে লিখতে শুরু করতেন, কি লিখছেন উনিও জানেন না। তো একটা আধ্যাত্মিক ভাব সম্পন্ন হয়ে যাওয়া, মনের ভিতরে জীবনের সারবত্তা খুঁজতে সে আত্মা লেগে যাবে, সে আত্মা থেমে থাকবে না। তো আমাদের মধ্যে এই অক্ষরগুলো কি আমাদেরকে স্পার্ক করে, চেতনা জাগায়? उत्तरे बाबा बोलছেন, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। অত্যন্ত গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে যারা আমরা দেবী দেবতা হতে চলছি, যে পুরানো হোক নতুন হোক, তাদের সামনে যখন বাবার অক্ষরগুলি আসে বা মহাবাক্য আসে, তাদের একটা নেশা চলে যাওয়া উচিত যে দুনিয়াতে তো এতদিন অনেক উপন্যাস পড়েছি, খবরের কাগজ পড়েছি, টিভি দেখেছি, সিরিয়াল দেখেছি, সিনেমা দেখেছি, তো এগুলো তো জীবনের কোনো কাজে আসেনি। আর এখন এই কথাটা আমার গ্রহণযোগ্য কিনা, আমার প্রয়োজন কিনা, যদি দেবী দেবতার আত্মা হয়ে থাকে তাহলে এই কথাগুলির প্রতি তার একেবারে আকর্ষণ এসে যাবে যে না, আমাকে অবশ্যই একটা প্রতিযোগিতা চলছে, আমাকে এই প্রতিযোগিতা অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে, আমাকে দেবী দেবতা হতে হবে, আমাকে অশুদ্ধ খান পান। বাবা ডিটেইল আজকে বলেছে যে বিড়ি, সিগারেট বা অন্যান্য কিছু নেশা জাতীয় যদি জিনিস, তা তো কখনো দেবতার ভোগে দেওয়া হয় না। আর আমরা হচ্ছি দেবী দেবতা। বা বাকি যেসব জিনিস আমাদের শরীরের গঠনের সঙ্গে মোটেই মিলে না, এগুলো যদি বারবার আমরা ইনস্টল করতে থাকি তাহলে আমাদের তো যেমন অন্ন তেমন মন শুদ্ধ হবে না, বাবার জ্ঞানও আমাদের ভিতরে ঢুকবে না, ধারণ হবে না। যদি আমরা এই ক্যাটাগরির আত্মা হয়ে থাকি তাহলে প্রথম আমাদের স্ট্রোক হবে যে খান পানকে আমাদের শুদ্ধ করতেই হবে। এই কথাগুলো আমাদের জন্য, দেবী দেবতা আমাকেই হতে হবে, দিব্যগুণ আমাকেই ধারণ করতে হবে। আজকের গীত ভোলেনাথ से निराला कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई नहीं। তো এই গীতের উপর যদি আমরা লক্ষ্য দেই তাহলে আজকে মুরলীর হেডলাইন প্রশ্ন উত্তর মেডিসিন তার মধ্যেই দেওয়া আছে। অর্থাৎ যে আমাদের
দেহধারীর প্রতি, যে এতদিন আমরা নিজের সংসারে ছিলাম তখনও আমাদের মাখামাখি ছিল দেহধারীর প্রতি, এখন ঈশ্বরীয় পরিবারে এসেছি, ইন্দ্রসভাতে এসেছি, এখনও বাবা দেখছে আমাদের মাখামাখি দেহধারীর প্রতি। তো এতে করে আমরা দিন প্রতিদিন আমরা বিগড়ে যাচ্ছি। যে মন এবং বুদ্ধি দিয়ে ভগবানকে নিজের করে নেওয়া, আপন করে নেওয়া, সেই ভগবানকে তো আপন করতে পারছি না। সমৃদ্ধি হচ্ছে, ধন আসছে, কিন্তু যেটা আসল প্রয়োজন সেটা আমাদের হচ্ছে না। সেজন্যই বাবা বলছে যে কোনো দেহধারী নয়, ব্রহ্মা বাবা নয়, কোনো দেবী দেবতা নয়, লৌকিক পরিবারের কর্তব্য পালন করা এক জিনিস, আর মাখামাখি এক জিনিস। ওইটাই বাবা আজকে ফোকাস করেছে। আর খান পান, যার উপর আমাদের অনেক অনেক বেশি ধ্যান দিতে হবে। খামখেয়ালি নয়, দিন চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো এখন বিনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, একদিন অ্যান্ড ডে হয়ে যাবে। বৌদ্ধ ধর্মে বলেছে ডোম ডে, আর বাবা বলছেন অ্যান্ড ডে। ওই অ্যান্ডের আগে আমাদের এই বিষয়গুলোর উপর একেবারে দখল আসতে হবে। ओम शांति। भोलानाथ के बच्चे सब सुन रहे हैं ना, किससे सुन रहे हैं? भोलानाथ से। ये अपनापन आना चाहिए। भगवान এই আসরে এসেছে আমি आत्माকে বোঝানোর জন্য। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता, उनका नाम है ही शिव। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के हम सब बच्चे बैठे हैं। अपने को आत्मा समझ करके बैठो। आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। पूरा डिटाच হয়ে যাওয়ার অভ্যাস আমাদের করতে হবে। যে কোনো মুরলি, যে কোনো দিন আমি আত্মা বাবার এই মহাবাক্য कान द्वारा सुनছি। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो ना, आत्म अभिमानी। देह का कोई विकार नहीं, देह का कोई शोधबोध नहीं। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। जिसको तुम परम पिता, परम यानी परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो, उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं? तो वो तो कौन कहते हैं कि वो फादर है? कौन कहते हैं? आत्मा कहते हैं। तो आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यो ज्ञान नहीं है। सिंपल बात। দুনিয়ার যত গুরু গোসাই থাকুক না কেন, যাদের উপর মানুষের বেশি ভরসা, তো বাবা বলছে তারাই চিনে না परमात्मा के, যে আমাদেরকে গতি সদ্গতি দেবে। तो हम आत्मा को दो बाप है, एक साकार अपने अपने घरों में है, एक है निराकार। এই সময় इंद्र सभाते यो वो परम पिता है, तो यो समझानी और कोई दे ना सके। ये समझानी मैं परमात्मा हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, शिक्षक हूँ, सदगुरु हूँ, ये समझानी दुनिया में चक्कर लगा करके आओ, तो बाबा कहते हैं कोई समझानी दे ना सके। किसी का कोई अथॉरिटी नहीं है बाप के सिवाय, और कोई ये पूछ ना सके। क्या? बाप ही पूछते हैं तुम जो कहते हो परमपिता परमात्मा गॉडफादर, वो तुम किसके लिए कहते हो? तो बाबा कहते हैं आमी छाड़ा दुनियाते आर केउ जिज्ञासा करते पारे ना, तोमरा जे गॉडफादर बोलछो इंग्रेजीते, हिंदीते बोलछो सुप्रीम, हिंदीते बोलछो परम पिता, और बांग्लाते बोलछो बाबा। तो সে কে? তার সাথে তোমার সম্পর্ক কি? तो वो गॉडफादर तुम किसके लिए कहते हो?
तो क्या लौकिक बाप के लिए व पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक फादर को गॉड फादर तो नहीं कहेंगे, लौकिक बाप तो बाप ही होता है, वो तो हमें संपत्ति देगा, सुख देगा, धन देगा, देगा ना। तो हिंदी में अक्षर भी है परमपिता, अंग्रेजी में गॉड फादर है, तो वो तो है ही निराकार ईश्वर। प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। भक्तिते आमादेर शिखिए एसेছে हे प्रभु, हे गोविंद, हे दीननाथ। तो এই কথাটা আর বাবা কথাটার মধ্যে রাত্র দিন তফাৎ। বাবা মানে আমি নিশ্চয়ই বাবার সম্পত্তি প্রাপ্ত করব, বাবা মানে বাবা আমাকে সঠিক করে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, शिक्षा दीजिए। तो गॉड फादर अक्षर अच्छा है, आत्मा ने कहा वो हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर से हैं, कितने फादर से हैं? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। तो এখন আমরা জানি আরও একজন আমাদের পিতা আছে, তিনি হলেন অলৌকিক। तो ये दोनों में, लौकिक और अलौकिक दोनों में बड़ा कौन है? जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा क्या है? धीरे धीरे अपने को जागरूक करना, धीरे धीरे अपने को बढ़ाना। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। तो ये भी अभी तुम समझते हो। भक्ति में, भक्ति तो क्यों बोले हो नहीं, कोनो आमादेर प्रचेष्टाओ चलेनी। दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत होना चाहिए। এখন আমাদের তো বুকে হাত দিয়ে দেখবো বাস্তবে আমার মনটা কোথায় পড়ে আছে, कि बाबार प्रति ना अन्य कोनो देहधारीर प्रति। औरों को है, औरों का है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का अभी समय है ना। तो वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। बाबा कोनो भय देखाচ্ছেন ना, প্র্যাকটিক্যাল কথা বলছেন যে এখন যে তুমি ঘরে যাবে বিনাশ হবে, তো তাহলে যদি দেহধারীর প্রতি আটকে থাকো তাহলে অন্তিম সময় দেহধারী তো তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে না। এরোপ্লেন, ট্যাঙ্কস, বাবা বলছে যাদের বিপরীত বুদ্ধি তারা কি করছে? एरोप्लेन, टैंक्स, गोला बारूद आदि एक दो को एक कंट्री दूसरे कंट्री को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं। तो पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं। तार परिणाम की होबे सेटा ना चीन जाचाई करे, ना अमेरिका जाचाई करे, ना राशिया जाचाई करे। तार परिणाम की होबे? एत जे गोला बारूद बिक्री करছে অন্য দেশকে, शक्तिशाली करছে। तो बाबा बोलছে उधार पर भी देते हैं। तो प्लेन, बारूद आदि ये सब खरीद करते हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं, बेलायत वाले बनाते हैं, तो वो फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़ी ही प्लेन आदि बेचते हैं। ওই সময়কার কথা, তখন তো ভারত অনেক দুর্বল ছিল, अनेक दरिद्र छिलो। तो बाबा बोलছে तो ये सब चीज़ें बाहर से आई हुई है, अब जो चीज़ खरीद करेंगे सो जरूर काम में लगाएंगे। ये गोला बारूद, एटम बोम एगुला तो आलमारीते स्टक करे राखार जन्य नय, एगुला मानुषेर प्रति यूज होबे, फेंकने के लिए थोड़ी ही लेंगे। तो वो है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जादव संप्रदाय। तो जो यूरोप में रहते हैं तो उसमें सब आ गए। बाबा बोलছে यूरोप कान्ट्रिर साथे संयुक्त करे যারাই নাকি এই মানসিকতা সম্পন্ন নিয়ে ব্যবসা করছে, তো তারা সব এক গোত্রীয় হয়ে গেল, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आते ही तब जब पुराना दुनिया खत्म होनी है और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी ख़त्म नहीं होता। तो बोलছে আমি ভারতে আসি, ভারতে জন্ম নেই, সেজন্য ভারত তো অবিনাশী খণ্ড। এই ভারতের হবে, সেখানে রক্তের গঙ্গা বইবে, জাতি দাঙ্গা হবে,
প্রাকৃতিক বিপর্যয় হবে, কিন্তু একেবারে তলিয়ে যাবে না, जलमग्न हो जावे ना। तो बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं कि शिव बाबा कब आते हैं, आकर के क्या करते हैं। तो आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रहा है। बाबा महावाक्य बोलছেন जदा जदा हि धर्मस्य, যখন আত্মাদের এমন পতন হয় আর দুনিয়ার মধ্যে যখন বিনাশের তৈয়ারি শুরু হয় তখনই আমি আসি, আর এটাই হলো প্রকৃত সময়। और बाप कहते हैं वो है यूरोपवासी যাদব সম্প্রদায় जो सतयुग में नहीं होंगे। এটাও বাবা আমাদের খুশি জাগানোর জন্য বলছে যে যারা এখন যে আতঙ্ক করছে, যারা এখন গোলা বারুদ বানাচ্ছে, বিক্রি করছে, তারা সত্যযুগে আসবে না। ना बुद्धि आएंगे, ना क्रिश्चियन आएंगे, ना इस्लाम आएंगे। और बाप कहते हैं उन्हों का है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को पहला कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। এটা ভারতের থেকে তারা শিখেছে। এক তো বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি, দ্বিতীয় বলে যে ভগবান সর্বব্যাপী। तुम हो विनाशकाले प्रीत बुद्धि, तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्म में पाप आत्मा तम प्रधान बन गए। এখন আমাদের জীবনের উত্থান পতনের কাহিনী আমরা জানি। এখন আমাদের অবস্থা কোথায়? বাবা বলছে এটা মানচিত্র, এই সিঁড়ির চিত্রটা হলো মানচিত্র। এই মানচিত্রে এখন আমাদের স্থিতি কোথায়? আমরা একেবারে তমপ্রধান। तो इसलिए भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापिस जाना है। तुमको इस समय बाबा राजयोग सिखला रहे हैं। तो यह है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। बाबा इन एडवांस सब किछु तथ्य आमादेर काछे तुले दिएछेन। विनाश होबे, एखन मृत्युर समय, मृत्युर मिছিল হবে, रक्तेर नदी বইবে, किन्तु भारत खंड होबे ना। किन्तु যারা বিনাশকালে প্রীত বুদ্ধি তারাই রক্ষা পাবে, তারাই এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই, সেই স্থিতি নিয়ে বাবার সঙ্গে ঘরে যেতে পারবে। তো আমরাও যদি গুটি কয় আত্মা যদি চাই আমাদের অন্তিম সময়টা এমন হোক, তাহলে হতে পারে। तो बाबा कहते हैं तो उन जादवों का भी ईश्वर से प्रीत नहीं है जरा विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इसलिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगाना है। बाबा बाबार आज के जे मुरलीर विशेषता, विशेष जे उपदेश, जे महावाक्य, जे कोनो देहधारीते प्रीत लागानो नय। এই প্রীতকে নিয়ে আমরা অনেক চর্চাও করি, কিন্তু আবার ভুলেও যাই। দেহধারীর প্রতি সম্পর্ক এক জিনিস, প্রীত আরেক জিনিস। তো বাবা উপদেশ দিচ্ছেন যেন প্রীত না রাখি। তো वो तो है রচনা, আমি যা সকলেও তা। तो उनसे वर्षा मिल ना सके तो भाई से वर्षा थोड़ी ही मिलेगा। तो ये तो अच्छी रीति से समझाया है। मंदिरे गिয়েও যদি আমি नीच छल कपट যতই বলি না কেন, मंत्र उच्चारण करी, किंतु रेजल्ट किंतु जीरो। तो अभी बच्चे अभी समझते हो। तो उनको है विनाशकाले प्रीत बुद्धि और हमारा है इस समय विनाशकाले प्रीत बुद्धि। कितना डिफरेंस हुआ? तो इसमें भी जो प्रीत, जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाबा ने नया शब्द जोड़ दिया। प्रीत बुद्धि तो बाबा का साथ है, लेकिन तीव्र प्रीत बुद्धि वाले हैं तो बाप से पूरा प्रीत रखते हैं। तो हम बाबा से 21 जन्मों स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। तो वो बाबा ही सत्य बताते हैं। दुनिया के घोरे देखेছি तो स्वार्थेर दुनिया, लेन देनेर दुनिया, आशा आकांक्षार दुनिया, कामनार दुनिया। तो बाबा ने कहा
बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं फिर नया मकान से प्रीत लग जाती है तो समझा जाता है पुराना मकान टूट जानी है। तो हम भी पुराना दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। এই সময় স্বর্গ দুনিয়া বাবা হাতে করে নিয়ে এসেছে। এই দুনিয়ার প্রতি আমাদের প্রীত কেন রাখবো? बाबा समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाता है, देखते हो ना कितने हंगामा होता है। तो समझते हैं बस अभी ये खलास होने वाले हैं। तो हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े। बाबा कहते हैं शुद्ध बाबा के नय परम धाम के नय नतून दुनिया आमादेर केमन होबे, नतून दुनिया केमन होबे तार प्रति आमादेर अनेक एकात्म होते हबे। बहुत के बाप और वर्षों को याद करना है और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करने के लिए जाते हैं, उनको भी पतित पावन कहते हैं। दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकाल आई। ये भक्तिर जे तो काहिनी गान बा एत नाटक बानानो हयेछे तो मानुषेर माथा सेखानेई सपे गेছে, সেখানে আটকে গেছে। तीर मेरेছে, गंगा बेर হয়ে এসেছে। गंगा जल मुख में देते हैं और पानी भरेও विदेশেও নিয়ে যায়, একটু একটু করে बाल्तीते একটু একটু করে দিয়ে तार संगे जल मिशिए गंगा जल स्नान करे। तो समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। तो बाप कहते हैं तो यह है ज्ञान की बात, ज्ञान गंगा जल। तो रोज ये इंद्र सभाते बाबा जी आमादेरके परिवेशन करছেন, एटाई हलो आत्मा शुद्धिकरण। तुम थोड़ा भी सुनते हो तो फल मिल सकता, कारण ज्ञानेर कोनो विनाश नहीं। तो ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है। देखिए से सागर मंथने अमृत उठे एसेছে, अमृत पान करे देवी देवता হয়ে গেছে শর্টকাট। तो बाबा বলছে এই अमृत पान करे তোমরা কখনো देवी देवता होते पारবে ना, ये नॉलेज है, ऐसे नहीं समझो। आज भोग का दिन है तो भोग के दिन अमृत देते हैं, अमृत पीते हो तो इससे तुम्हारा मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगा, तुम देवी देवता बन जाएंगे। नहीं, वो तो मीठा पानी है, मीठा पानी है। बाकी ये है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, एटाई हलो এই प्रतियोगितार मूल कथा हलो आमी कि आसले 84 जन्म नेওয়ার मतो पुरुषार्थ करছি। सब तो ले ना सके, पहले पहले भारतवासी ही आते हैं तो वही पूरी 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। तो बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकार में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज्य, सतयुग था देवी राज्य। शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं, स्वर्गपुरी नरकपुरी रावण बनाते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है। कारबार तो चलছে, लेकिन तो আমরা তো আটকে যাচ্ছি হয় দেহদারিতে, নতুবা বিনাশকালে विपरीत बुद्धि है। तो तुम्हारी विनाशकाले प्रेत बुद्धि है, इसीलिए विजय है। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, ये अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलियुग में हैं सो फिर बदल करके स्वर्ग में हम जाएंगे। तो पुरानी दुनिया को छोड़ना है ना। यो विकारी संबंध बाबा ने मूल बात हमें समझाते हैं। ये विकारी संबंध तो इसको बंधन कहा जाता है। ये दुनियार जतो किछु आशा रखा, आकांक्षा रखा, कामना रखा, सुख कथा बोले सुख। तो बाबा आमादेरके कि शिखिয়েছেন? स्पर्शहीन भालोबासा।
এটাই হলো ঊর্ধ্ব লেভেলের কথা। तो और बाकी बाबा कहते हैं बंधन विकार, तुम विकारी बंधन से निकाल कर तो निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्मों में तुम विकारी बंधन में तो विकारी बंधन में नहीं आएंगे। এখন যদি নির্বিকারী যদি আমাদের জীবনটাকে তৈরি করি তাহলে শতযুগে কি বিকারী সম্বন্ধ থাকবে না। तो वहाँ है ही निर्विकारी संबंध सत्ययुग में। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत बुद्धि है। যখন আমাদের জীবনের ক্যালকুলেশন মিলে যায় তখন আমরা বলি যে বাবা তুমি রক্ষাকর্তা, তুমি আমার সব কিছু, তুমি বিনা दुनिया स्वार्थपर। तो तुम ब्राह्मणी की प्रीत है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो, बाप को सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। जो जास्ती समझते हैं वो होशियार है, ऊंच पद भी वही पाएंगे। बाबा कहते हैं भाषण करो, समझाओ, डर नहीं रखो। एक ही तो कथा जानकी दादी जा बोले गेছেন, এখন আত্মারা যা বলছে বাবা যা শিখিয়েছেন সকলকে এক সমান। तो सर्विस तो कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने ये अक्षर गुंजेंगे। যারা दैवी সম্প্রদায় বাবা বলছে তারা সিনেমাও দেখেছে, নোবেলও পড়েছে, শাস্ত্রও পড়েছে, খবরের কাগজ পড়েছে, দেখেছে সারবত্তা কিছুই নেই। তাদের কাছে যখন এই শব্দগুলো আসবে, কথাগুলো আসবে, মহাবাক্য আসবে, তাদের কাছে এগুলো যেন ঘুরপাক খাবে। যেমন ব্রহ্মা বাবার সামনে এগুলো এসেছিল, আমাদের সামনে আসছে। এখন দেখার বিষয় এই কথাগুলো আমাকে বেশি আমার মনোযোগ দেয় না বাকি এই দুনিয়ার প্রতি আমার মনোযোগটা বেশি। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं तो उनके सामने ये अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे ये तो ठीक बात है, तो बराबर हम देवी देवता बनेंगे। तो हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए, दैवी गुण भी यहाँ धारण करना है, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। अभी तुम बन रहे हो ना, ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं तो उनको भोग लगाते हैं क्या? बीड़ी सिगरेट आदि का भोग लगाते हो क्या? तो सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ये कोई दैवी चीज नहीं है, दैवी चीज नहीं है। सिगरेट पिएंगे व प्याज लहसुन आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे कहते हैं। तो यो छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। যে নাকি যেটাতে আসক্ত সে এটার বড়াই করবে, এটা ছাড়া তো আমার জীবন चलবে না। तो बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है तो समझाने दी जाती है। देवताओं को कभी भी यह भोग में नहीं लगाया जाता। तो तुमको भी इन जैसा चीज तुम्हें पकड़ के नहीं रखना। तुम छीछी चीज खाते रहेंगे तो बांस आती रहेगी। बाबा ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। सिगरेट या शराब पीने वाले से दूर से ही बास आते हैं। এই ঘরে যদি কেউ একজনও ঢোকে তো সকলেই এই ঘ্রাণ শক্তি দিয়ে সকলেই বুঝে যাবে। तो बाबा बोले तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है ना तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। यहाँ तो तुम ईश्वरीय संतान, यो तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। बाबा ने नशा चढ़ाया, এটাই হলো তোমাদের, ভেবে দেখো এটাই তোমার সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ জীবন। যেই জীবনে এখন যা প্লাস ছিল
তা মাইনাস করতে হবে, যা মাইনাস ছিল তাকে প্লাস করতে হবে। এই সময় এটা प्लस माइनस समय तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो, तो यह है बेहद बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोग की मिशनरी होती है ना, धर्म प्रचार, तो उनके क्रिश्चियन धर्मों में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं, तो यह है ईश्वरीय मिशनरी। बाबा बोलছে কি धर्म प्रचार नय, आदि सनातन देवी देवता धर्मेर जानकारी एक হচ্ছে प्रचार, তাতে ব্যবসা अनेक अनेक किछु। तुम शूद्र ब्राह्मण से तो शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो गए हो, तो फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तो तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बन रहे हैं, तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे। यदि पुरानो कृष्टि कल्चर আমরা এখন नाश करते पारी, তাহলে বাবা বলছে তুমি निश्चित देवता होते पारबे। तो गर्भ से जन्म मिलेगा, तो यहाँ तुमको बाप से धर्म का बच्चा बनाया जाता है, धर्म का बच्चा बनाया जाता है, धर्मात्मा बनाते हैं। बाप ने तुमको अपना बनाया है, तो बच्चों को बाप शिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनाते हैं। तो हमारे जीवनेर जे घूर्णन प्रक्रिया, तो ये मनुष्य कितने उच्च है, इनमें सब दैवी गुण है। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, कांचन काया शरीर मिलेगा सत्ययुग में। तो पुराने शरीर खत्म होना है, फिर तुमको नए सतप्रधान शरीर चाहिए। सत्ययुग में 5 तत्व भी शतप्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्णों के थे। কিছুদিন আগেও আমাদের ধ্যান ধারণা আচার আচরণ কথাবার্তা সব কিছু শূদ্র ঘরানার মতো ছিল। और फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्णों में जाएंगे, 84 जन्म लेंगे ना। बाबा कहते खुशी है ना, ब्राह्मण वर्णों को गोम कर दिया गया है, विराट रूपेर जो चित्र बनिए छे, और बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो तो चोटी बाजुली होती है ना, अभी ब्राह्मण है, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, ये नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी। ये ज्ञान ही हमारे की हबे कन्वर्ट हुए धन सम्पद सुख सुविधा। ये ज्ञान जेटा कोनो रकम स्थूल वस्तु नय। तो बाबा कहते हैं तो वहाँ सदा सुखी रहेंगे 21 जन्म नंबर बार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजाए घराना में जाएंगे, कोई प्रजाए घराना में जाएंगे। राजाई घराना में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती है। तो तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है ना। बाप आकर समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारे अब 84 का जन्म पूरे हुए हैं। कोई ने 84 जन्म लिया, कोई ने 80 जन्म लिया, कोई ने 60 जन्म लिया, कोई ने 50 जन्म लिया। तो सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम वाला है, ड्रामा में तुम्हारा नाम वाला है। किसका? ब्राह्मणों का। देवताओं से भी उच्च जन्म हमारा है, देवताओं से भी तुम उच्च बनते हो। तुम जानते हो हम सब पूज्य बनते हैं। सत्ययुग में हम किसको भी पूजा करते नहीं। सत्ययुग में हम किसको पूजा नहीं करेंगे, कोई हमको पूजा नहीं करेंगे। क्यों? तो न कोई हमको पूजेंगे, न हम कोई को पूजेंगे सत्ययुग में। तो वहाँ हम ही पूज्य, फिर कलाएं कम हो जाती हैं। हम पूज्य से पुजारी बन माथा टेकने लगते हैं। मंदिरे मंदिरे पाए पाए जाके देखी ताके प्रणाम, घाटे घाटे प्रणाम, मंदिरे मंदिरे प्रणाम। तो এই সংস্কার এখন আমাদের তৈরি করতে হবে। শতযুগে যেমন কাউকে পূজা করতে না হয়, না আমাকে কেউ করবে, না আমি কাউকে করব, ওই সংস্কার বাবা বলছে এখন जीते जी तुम्हें मरना है। द्वापर से हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाता है। ये शरीर 5 तत्व का है तो बना हुआ है, उनको बैठ कोई पूजा करने लगता है, तो से पूजा की पूजा होवे।
যে শরীরের পূজা যদি কোনো কেউ বসিয়ে করে, হ্যাঁ, তো সেই পূজাকে কি বলা হয়? বাবা অনেকবার মুরলিতে বলেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, भूत पूजा। तो बाबा बोलছে तो ये भूत पूजा है। हर एक में 5 भूत है ना, तो 5 तत्व 5 भूत है, पंचभूत। तो देह अभिमान का भूत, फिर काम का भूत होता है। भूत तो संप्रदाय को हो अथवा आसुरी संप्रदाय को हो, बात एक ही है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगा करके देवता बनाने। गुरु नानक ने भी परमात्मा को बहुत अच्छा महिमा किया। महिमा गाई जाती है। गुरु नानक शतजुगेर आत्मा नय, संगम जुगे एसो बाबार पढ़ाई पड़ेनी, किन्तु स्पेशल आत्मा होवार कारणे बोलছে परमात्मा, परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया। गुरु ग्रंथे आछे मनुष्य से देवता किए करत ना लागिवार, এটা गुरु नानकेर बाणी। অথচ তিনি সত্যযুগের আত্মা নয়। वो पतितों को पावन बनाने वाला, मौत पलिति का अपराध है। ঠিক আছে না? তো কোথায় শিখ ধর্ম আর কোথায় আমাদের আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম? আমরা ভুলে গেছি, তাদের স্মরণে আছে। আচ্ছা, মিষ্টি মিষ্টি मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार 1 नंबर, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं सबको छोड़ना है। शूद्र को ब्राह्मण धर्मों में ब्राह्मण धर्मों में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्यों में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदे आदतें हैं वो निकाल देनी है। ये ईश्वरीय मिशने आसते होबे, खराब जिनिस के माइनास करते होबे, भालो जिनिस के प्लस करते होबे। नंबर 2, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीति रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। बाबा एटाও सजाग करे दिচ্ছে विनाशेर समय बाबार प्रति प्रीत जेन आमरा राखी, कारण এই दुनिया भम्बरों को आग लगना है। दुनियार एत आशा आकांक्षा अभिमान एत अहंकार सब किछु माटीते मिशे जाबे, इसलिए नया दुनिया से प्रीत रखती है। आज का वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भाव।
যাতে ভক্তরা যাতে আমাদেরকে গলায় রাখে, স্মরণ করে, তার জন্য বাবা বলছে এখন শ্রেষ্ঠ কর্ম আর যোগযুক্ত যুক্তিযুক্ত হওয়ার বরদান আমাদেরকে দিচ্ছে। হয়েছিলাম তবে বরদান দিচ্ছে, আবারও হয়ে যাব। তার अर्थ आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं तो उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योगयुक्त बनो। योगयुक्त बनने से हर संकल्प, शब्द, कर्म युक्तियुक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो नहीं सकता। तो ये भी कनेक्शन है। युक्तियुक्त थाका ब्राह्मण जीवनेर जे मर्यादा, से मर्यादे थाका, तो एटाও একটা বাবার সঙ্গে কানেকশন। আজকের স্লোগান निमित्त और निर्माण चित्त। निमित्त और निर्माण चित्त, तो यही सच्चे सेवादारी के लक्षण है। আজকের अव्यक्त इशारा निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवादारी के लक्षण है। अव्यक्त इशारा सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। एर अंतर्गत आज के पॉइंट सरल चित नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ मुखे हासि थाकले चलबे ना, नयनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। अच्छा, ओम शांति।